After wandering around cities, including Rishikesh, the yoga capital of the world, I couldn't find the deeper and stronger connection I was seeking. That's why around 7 in the morning, I started my quest in the jungle and mountains. The quest for moksha, Kevalya, existence. How does it feel to live in solitude, far away from everything? The preparation of death, मौत, जीवन का सत्य. Majority of people, they are not talking about death. Even if you talking about your death in front of your mother, father or family, वो क्या कहेंगे? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो सुबह सुबह? But ask them, सच है ना? इसके बारे में क्यों बात नहीं करनी है? I saw a boundary made of stones and there was a pathway for water to flow. तो मैं समझ गया इधर आसपास कोई तो रहता है. I was curious. I followed the path where the water was flowing and came across a small hut. और जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक साधु मिले. As soon as I approached him, he instructed me to have darshan of Lord Shiva और कहा कि मांग लो जो चाहिए. और जैसे ही मैं दर्शन करने गया, I saw someone already inside. It was a moment of shock for me. लोग कहते हैं ना कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आया, मुझे यहाँ लाया गया है. मैं सोच रहा था कि मैं ही ये सब कर रहा हूँ, कि ये खोज मेरी है, पर उस पल में मुझे महसूस हुआ कि मुझे यहाँ होना ही था. इसमें कुछ अनोखी आध्यात्मिक ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते. शायद यही है वो अद्भुत खोज जिसमें हम अपने असल अस्तित्व को पाते हैं. Let's experience our ancient yoga and the pure consciousness. A day in the life of yogi. आज जो फैशन चला है योगा का, उसने योग को कहीं पीछे छोड़ दिया. योगा का कनेक्शन सीधा सीधा है नेचर से. एंड यू आर प्रैक्टिसिंग योर आसनास in your home, in your room, it's good. I'm not saying it's bad. But yoga is not to be performed. Yoga is to be lived. Meet Yogi Shakti, founder of Samadhi Yoga Foundation. He is not just an ordinary yogi. He lives deep within the mystical jungles of the mountains, surrounded by nature's beauty. Not only he is a master of sound healing, meditation and yoga, but he also has a profound understanding of mantras and spirituality. People from all corners of the world visit him to experience his transformative sound meditation sessions. He learned this practice from his Hindu and Buddhist gurus during his time in the Himalayas. Yogi Shakti has healed numerous individuals across the globe, spreading his positive energy in the snowy regions and beyond. पहले आयुर्वेद आए. कौन लाए? 7 sages, सप्तऋषि. महादेव से कहा हम लोग बीमार होते हैं तो महादेव ने कहा जाओ आयुर्वेद का ज्ञान दिया. कुछ समय बाद वो महादेव के बाद दोबारा जाते हैं कि महादेव आयुर्वेद तो आपने हमको दिया, बट अभी भी लोग बीमार पड़ते हैं. तो महादेव ने उनको समझाया कि आज जो डिजीज, जो समस्याएं तुम लोगों की हो रही हैं, वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक है. तो महादेव ने उन सप्तऋषियों को बोला ऋषि पतंजलि आएंगे. तब ऋषि पतंजलि अवतरित हुए धरती पर और उन्होंने योग सूत्रास दी. और उनकी शर्त थी सप्तऋषियों से कि तुम जाओ और देश के कोने कोने से साधु इकट्ठे करके लाओ. और जब तक 1000 साधु नहीं होंगे तब तक मैं योग की दीक्षा नहीं दूंगा. गुरु पतंजलि ने योग की दीक्षा दी जब 1000 साधु इकट्ठे हुए और उन्होंने इस पूरी दुनिया में योग को जाकर फैलाया. So I ended up staying there that night and around 6 we started cooking dinner. इसको भी धोएंगे ना, इसी में लगी हो. अलग अलग सलाद में खा जाओ. रोटी भी हमने कर लो और उसमें अदरक भी छोड़ दो. टमाटर में ना अलग से तेल पड़ेगा, तेल में In the silence of the night,
cooking the food in the mountains within the jungle, surrounded by the soothing sound of the river Ganga. और इन सब के बीच जो मुझे फील हो रहा था वही ध्यान है. I was fully in the moment, conscious, aware, and while cooking in the woods, I was feeling the energies that nature holds. वो रात का अंधेरा और इतनी ठंड में आग का सुकून. And the raw food, the taste of earth and nature, freshly cooked. अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माताश्च पार्वती देवी पिता देवो परमेश्वरा बांधवा शिवा. It felt like जैसे उस रोटी में there was some divine magic. Just by touching it brought a sense of tranquility to my hands. I actually felt the connection between the food and the divine. Normally खाने के बाद we feel lazy, but after eating that food, my mind and body was extra active. आलस नहीं थे, and the soul within me felt grateful and thankful उस moment में. फिर गरम दूध पीकर कुछ क्रिया और साधना थी जो हमने साथ की. और कुछ थी जिसके लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए था और वो रिकॉर्ड करने की परमिशन मुझे नहीं थी. और हम बजरंगबली के भक्त हैं, जो भी काम करते हैं परमिशन लेके करते हैं. तो बस हमने हमारा बिस्तर गाय माता के पास लगाया और सो गए. मेरी नींद सुबह 4 बजे खुली और आखिरी बार मैं कब इतना फ्रेश बॉडी और माइंड के साथ उठा था आई डोंट इवन रिमेंबर. काफ़ी ठंड थी और हवा में ताजगी. अच्छा लग रहा था. There was no rush, no noise, just pure serenity. ना बीता हुआ कल, ना आने वाला. बस वो पल था, आज था और मैं था. वहाँ सुबह की रोशनी felt like I was touched by something divine. मैं अपनी शांति में था, पर मुझे गुरुजी ने आके कहा कि स्नान करने चलना है, और वो भी गंगा स्नान. तब मेरा पीस थोड़ा हिल गया, क्योंकि मैं कोई विद्युत जामवाल तो हूँ नहीं. तो बस गरम तेल में जैसे राई उछलती है वैसे ही मैं ठंडे पानी में उछलते कूदते नहा लिया. बट बिफोर दैट आई डिड द वार्म अप. पहली टिप अपने लिए, हमें गंगा माँ निरोगी रखे, पाप मुक्त रखे. दूसरा अपने परिवार के लिए, हमारे एंसेस्टर्स जो हमें छोड़कर जा चुके हैं वे जहाँ भी हों सुखी हों. और तीसरा इस प्लैनेट अर्थ के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, वसुधैव कुटुंबकम. But after that, I was thoughtless. I was alive. I was Shakti. First we chant Om. Take a deep inhale. And after Ganga Snan, this meditation was like moksha. समर्थ स्वामी रामदास ने क्या दिया शिवाजी को? यही हिमालय से गए थे स्वामी जी. वो गुरु थे और उन गुरुओं ने अपने शिष्यों को योग की दीक्षा दी. वह योग जो आज कोई नहीं सिखाता, वो सिखाते हैं केवल गुरु लोग. अब आपको यहाँ आना पड़ेगा. आप देख रहे हैं कैसी जगह है. आपको यहाँ रहना पड़ेगा, इन चटाइयों पर सोना पड़ेगा. ठंड आपको पता है कितनी हो रही है. अब ये महाराज जी आपके घर पर आकर योगा नहीं सिखाएंगे. हिमालय का गुरु आपको शहर में आकर योगा नहीं सिखाएगा, क्योंकि योगा का जो प्रथम चरण है ब्रीदिंग. We picked up some woods on our way back, and after keeping the wood, we headed straight to do yoga. We started with the Surya Namaskar. और उसके बाद के पोस्चर्स और आसनास मुझसे हुए ही नहीं. योगा इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू डू देन सिंपली वर्किंग आउट इन द जिम्स.
the strength, the flexibility, the balance it requires is limitless. Inhale, cobra pose. आपके शरीर के अंदर 112 चक्रास एग्जिस्ट करते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए ये आसनास है। रिचर्ड एल्पर्ट, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड का, एलएसडी इन्वेंट कर और अपनी एलएसडी अपने स्टूडेंट को दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉट हिम। डिप्रेशन में इंडिया आता है, गुरुजी से मिलता है, गुरुजी को देता है 80 एलएसडी। गुरुजी खाते हैं बैठ के, लेकिन गुरुजी का माइंड नहीं हिला। और जब वो ये जादू देखता है, वो रिचर्ड एल्पर्ट बन जाता है बाबा रामदास। After that, we did the sound healing. Now release all your stiffness from your body. And honestly, I felt a sense of detachment from the events that were taking place in my life. I just became a silent observer. Yogi Shakti has a beautiful cafe in the yoga capital of the world, Rishikesh. The cafe is a hub of positive energy, where you can immerse yourself in the enchanting world of mantras, kirtans, healings, and even folk music. It's a daily celebration of spirituality and soulful vibes. I can only imagine the incredible atmosphere in that cafe, where people come together to experience the magic of music and healing. Be ready to witness and experience Soham Shivam, the pure consciousness. Free yourself and surrender to divine. Krishna 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 Krishna